This nuclei consist of all the protons and all the neutrons. This nuclei consist of all the protons and all the neutrons. Electron lie outside the nuclei. Electron lie outside the nuclei. The spread of electron decides the size of an atom. ये इलेक्ट्रॉन जितना अधिक फैले हुए होंगे, जितना अधिक दूर दूर होंगे, एटम उतना ही बड़ा कहलाएगा. और this nuclei is negligible in size as compared to the size of atom. Based on this conclusions, based on this experiment, Rutherford suggested a model of atom. My next article is Rutherford model of atom. My next model is Rutherford model of atom. Rutherford ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह मॉडल सजेस्ट करा था. Rutherford ने कहा atom consists of a nuclei. Nuclei consist of all the protons and all the neutrons. This nuclei is negligible in size as compared to the size of atom. Electron lie outside the nuclei. And in order to explain the stability of this electron outside the nuclei, he took inspiration from solar system, solar model. Rutherford ने कहा, उसका जो लॉजिक था, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही है. जे थॉमसन ने जिस प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री की बात करी वो बिल्कुल सही है. देयर लाई सिमेट्री इन द यूनिवर्स इन माइक्रो एज वेल एज इन मैक्रो लेवल. इस यूनिवर्स में सिमेट्री होती है मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक, ये बिल्कुल सही है. मगर उस सिमेट्री को समझने में थॉमसन ने गलती कर दी. थॉमसन ने सिमेट्री को कैसे देखा? सूरज गोल, चंदा गोल, पृथ्वी गोल, तरबूज गोल, तो एटम भी गोल. ऐसे मत देखो सिमेट्री को. सिमेट्री को देखने का यह तरीका रखो. जिस तरह से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, जिस तरह से जुपिटर के चारों तरफ उसके ढेर सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जिस तरह से सैटर्न के चारों तरफ ढेर सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जिस तरह से इस यूनिवर्स में ढेर सारे स्टार्स हैं, उन स्टार्स के ढेर सारे प्लैनेट्स हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से माइक्रो लेवल पर देखें तो एटम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है. एटम के अंदर, इन एन एटम वी हैव गॉट a dense positively charged nuclei having all the protons and neutrons into it, and electron revolve around this nuclei such that electron revolve around the nuclei such that electrostatic coulombic force, attractive electrostatic coulombic force is equal to centrifugal force. रदरफोर्ड ने क्या कहा? यह प्रोटॉन, if we have got atomic number of Z, if atomic number is Z, number of proton is Z, if number of proton is equal to Z, or if atomic number is Z, then charge on the nuclei, इस nuclei पर जो charge होएगा plus Q, that is plus Ze, and charge on the electron is Q, that is minus E.
In that case, the electrostatic attractive Coulombic force is 1 by 4 pi epsilon naught into ZE into E by R square. Here R is the radii of the circular path. And this force must be equal to mv square by R. Electron revolve round the nuclei such that this principle, this equation must hold. Electrostatic, attractive electrostatic Coulombic force must be equal to centrifugal force. मैं दो बार आप बताता हूं. Rutherford model of atom. Rutherford suggested that atom consists of a dense, heavy, massive, positively charged body called nuclei. This nuclei consists of all the protons and all the neutrons. Owing to all, due to all the protons, it have got huge positive charge, and due to all the neutrons, it have got huge mass. This nuclei is negligible in size as compared to size of atom. This nuclei is very dense body. It lies in the center of atom. Electron revolve around the nuclei, same as planet revolve around the sun. Electron revolve around the nuclei, such that electrostatic attractive Coulombic force is equal to centrifugal force. Attractive Coulombic force is given by 1 by 4 pi epsilon naught. This is a constant. ZE into E by R square. ZE is the charge on proton and E is charge on the electron, and R is the radius of the path, and this is equal to mv square by R. The spread of electron decides the size of an atom. यह इलेक्ट्रॉन जितना दूर दूर तक फैले होंगे उतना ही बड़ा एटम है. फॉर एग्जाम्पल, if we ask what is the size of our solar system, the size of our solar system would be something like, if we determine, we used to say sun is at the center of solar system. sun तो solar system के center पर हुआ, and Pluto जो सबसे आखिरी का जो हमारा फैमिली का मेंबर है, जो सन के चारों तरफ घूम रहा है. अभी तक तो हमें प्लूटो ही पता है, उसके आगे क्या है हमें नहीं पता. अभी हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ घूमने वाला जो सबसे आखिरी सदस्य है वो प्लूटो है. इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट. वह जो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो हम कहेंगे द रेडियस ऑफ द सोलर सिस्टम इज डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम सन. दिस इज द रेडियस ऑफ द सोलर सिस्टम. बिल्कुल इसी तरह से जितना दूरी पर यह इलेक्ट्रॉन फैले हुए होंगे उतना ही बड़ा हमारा एटम हुआ. एंड दिस न्यूक्लियई इज नेग्लिजिबल इन साइज एज कंपेयर टू एटम. एटम के मुकाबले यह न्यूक्लियई नेग्लिजिबल साइज का होता है. इट्स वेरी डेंस. इसमें मास पूरा पूरा बंधा हुआ है और इसका साइज काफी कम है. दिस इलेक्ट्रॉन विच आर नेग्लिजिबल इन मास, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियई. और अल्फा पार्टिकल जो हाथी के समान है, हाथी दौड़ रहा हो तो बीच में कुछ चूहे हुए आ जाए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ये इलेक्ट्रॉन तो दौड़ते हुए हाथी के रास्ते में आने वाले चूहे के समान हुए. ये चूहे क्या कर लेंगे इसका? ये इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट पर कोई असर नहीं डालते हैं, कोई फर्क नहीं डालते. ये अल्फा पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा कभी डिविएट नहीं होते. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोट्स अनडिविएटेड. वन अमंग 200 अल्फा पार्टिकल गॉट डिविएटेड एंड वन अमंग 20,000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड बैक, क्योंकि वो सीधा सीधा न्यूक्लियस से टकराए होंगे. दिस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट became the turning point in the history of physics, because with this experiment only
we concluded the existence of nuclei. हमने न्यूक्लियई की एग्जिस्टेंस का कंक्लूजन इसी एक्सपेरिमेंट से निकाला. सबसे पहली बात न्यूक्लियई होता है हमें इसी एक्सपेरिमेंट से समझ में आया. रदरफोर्ड ने ही सबसे पहली बार न्यूक्लियई शब्द का इस्तेमाल करा. ऑल्दो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने इसके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर यह जो मॉडल ऑफ एटम दिया, अल्टीमेटली दिस मॉडल फेल्ड. दिस मॉडल ऑल्सो फेल्ड. रदरफोर्ड का यह मॉडल भी फेल हो गया था. कैसे फेल हुआ, किस तरह से फेल हुआ, ये आगे हम समझेंगे. मगर भले ही यह फेल हो गया, मगर फिर भी उसका यह एक्सपेरिमेंट एक तरीके से अमर हो गया. यह एक्सपेरिमेंट टर्निंग पॉइंट कहलाने लगा. यह एक्सपेरिमेंट टर्निंग पॉइंट इसलिए कहलाने लगा क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियई के एग्जिस्टेंस का पता लगा और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमते हैं. और इसी एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि एटम के अंदर ढेर सारी वैकेंट स्पेस होती है. Now, my next article would be the same. We'll discuss about the failure of Rutherford model. आखिर यह रदरफोर्ड मॉडल किस तरह से और कैसे फेल हो गया, हम इसके फेलियर का ही डिस्कशन करेंगे. और भी कुछ छोटी छोटी बातें पहले और समझ लेंगे, फिर इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे. लेट्स टेक another break here. Now, let's move on to the next article. And my next article is, we will discuss the failure of Rutherford model. Failure of Rutherford model. As I told you, Rutherford ने एक्सपेरिमेंट करा and that experiment become a turning point in the history of physics, and it's a turning point because through this experiment only we concluded the existence of nuclei, and based on this experiment and its observation, Rutherford had suggested his model, and in that model he suggested that nuclei consist of all the protons and neutrons and electron revolve around the nuclei. और उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियई इन एनी ऑर्बिट विथ एनी रेडियई सच दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय दैट एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू z स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. With that equation remaining true, electron would revolve around the nuclei in any orbit such that velocity and radius would always be restricted or constrained by that equation. मगर रदरफोर्ड का यह मॉडल फेल हो गया था. यह फेल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को मैं समझाता हूं. नील बोर ने रदरफोर्ड के इस मॉडल में ऑब्जेक्शन उठाया था और ऑब्जेक्शन उठाने के साथ ही इसको फेल भी प्रूव कर दिया था. और रदरफोर्ड ने अपने फेलियर को मान भी लिया था क्योंकि नील बोर ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो एक वैलिड ऑब्जेक्शन था. इनफैक्ट हुआ यह था, देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. James Clerk Maxwell, he was a physicist. There was a physicist named James Clerk Maxwell. He had observed a very interesting phenomena, and whatever he had observed, he demonstrated it to everybody. What was his observation? What observation was? If we have got two charges, if we have got two charged bodies,
there is one charged body having charge capital Q and there is another charged body having charge of small q. Now if there is any sort of relative motion, then this charged body emit radiations. If any relative motion, दो चार्ज बॉडी किसी भी तरह से यदि रिलेटिव मोशन करेंगी, दे एमिट रेडिएशंस और दे लूज देयर एनर्जी. James Clerk Maxwell had observed this phenomena for the first time, and after making this observation he demonstrated it to everybody. उस समय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल कभी इसे समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है. उस समय कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया था कि ऐसा क्यों होता है. एक चार्ज बॉडी हो, उसके करीब कोई दूसरी चार्ज बॉडी हो, और यह चार्ज बॉडी जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी भी तरह से रिलेटिव मोशन करती हैं, तो उस रिलेटिव मोशन के दौरान यह रेडिएशंस एमिट करने लगती हैं, और रेडिएशंस एमिट करते हुए ये अपनी एनर्जी लूज करने लगती है. और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के इस ऑब्जर्वेशन को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को नील बोर ने भी देखा था और रदरफोर्ड ने भी देखा था. दोनों इस फिनोमेना के गवाह थे. दोनों ने इस फिनोमेना को होते हुए देखा था. जो हो रहा है उसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो दिख रहा है उसे असत्य नहीं कहा जा सकता. वो तो दिख रहा है, हो रहा है. हमें भले ही समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मगर हो तो रहा है. अभी हम नहीं समझा पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है. आगे कभी ना कभी कोई ना कोई तो समझाएगा. जब हमें समझ में आएगा तब हम समझाएंगे, या जिसे समझ में आएगा वो हमें समझाएगा और सबको समझाएगा. मगर यह फिनोमेना हो रहा है. ये बात जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सबसे पहली बार देखी. जब उसने सबसे पहली बार देखी तो सभी को दिखाई. जब सभी को दिखाई तो देखने वालों में रदरफोर्ड भी था, देखने वालों में नील बोर भी था. बस ये ही इवेंट था जो इसके पहले ऑलरेडी हो चुका था. अब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट करा. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह बात कंक्लूड करी कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूक्लियई होती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के बाहर होते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमते हैं. रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियई के ऊपर प्लस Ze चार्ज होता है और माइनस E चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है. रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होगा, उसके बारे में सभी को बता रहा होगा. सामने कुछ 20-25 लोग बैठे हुए होंगे, 10-15 लोग जो उस समय ब्रिलियंट होते होंगे, जो उस समय फिजिसिस्ट कहलाते होंगे, और उन्हीं में सामने नील बोर भी बैठा हुआ होगा. वह भी उस बात को सुन रहा होगा. रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया. एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के बाद उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया, उसके कंक्लूजन्स के बारे में बताया, और अपने इस मॉडल ऑफ एटम को उसने प्रेजेंट करा. और इस मॉडल ऑफ एटम के साथ में उसने ये कहा कि यह इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करेगा, किसी भी रेडियस r में मूव करेगा. इस इलेक्ट्रॉन का मास यदि m है, देन दिस इक्वेशन मस्ट होल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. यह होल्ड करना चाहिए, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा होगा. उसी समय नील बोर ने हाथ उठाया, ऑब्जेक्शन, वहीं का वहीं रेस करा.
नील बोर ने कहा, मिस्टर रदरफोर्ड, वी हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड James Clerk's Maxwell experiment, and in that experiment he had already demonstrated us that whenever there is any type of relative motion between two charges, this charge bodies generally they would start emitting radiation during that relative motion, and along with that radiation they would keep on losing energy. ये बात हम ऑब्जर्व कर चुके हैं. Now you say that nuclei consist of all the protons, it means it's a charged body. You say that electron lie outside this nuclei, this is another charged body. And you say that this electron revolve around the nuclei. It means when electron revolve around the nuclei, in that case this electron and this nuclei, these are the two charged body, and there is relative motion between this two charged body, and during this relative motion this electron would keep on emitting radiation, and if this electron would keep on emitting radiation, in that case this electron would keep on losing energy, and if this electron would keep on losing energy, ultimately this electron would keep on approaching toward the nuclei, and ultimately this electron would get submerged in the nuclei. इस तरीके से तो धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हुए यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के करीब आता जाएगा, घूमते घूमते न्यूक्लियई के करीब आता जाएगा, और अल्टीमेटली यह इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियई के अंदर समा जाएगा. इस तरह से तो एटम कभी भी स्टेबल रह ही नहीं सकता. आप जिस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमता हुआ बता रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल तरीके से न्यूक्लियई के चारों तरफ नहीं घूम सकता. यदि आप इस ऑब्जर्वेशन को सही माने, भले ही हम यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, मगर ऐसा होता है ये हम जानते. जो चीज दिख रही है उसे गलत नहीं कहा जा सकता. जो चीज सामने सामने हो रही है उसे झुटलाया नहीं जा सकता है. इसे तो मानना ही पड़ेगा. आगे जो भी कुछ समझाना है इसे ध्यान में रखते हुए समझाना है. यह इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज बॉडी है, जब दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमेगा तो एनर्जी रेडिएशन एमिट करेगा. क्यों एमिट करेगा हम नहीं जानते, आगे जाके पता लगेगा. सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है. मगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन लूज करेगा, और यदि ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन लूज करेगा तो एनर्जी लूज करेगा. यदि एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियई के करीब आएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियई के अंदर समा जाएगा. तो ये मॉडल तो हो ही नहीं सकता. रदरफोर्ड नील बोर की इस बात पर सोचता रह गया, ना कर नहीं सकता था, क्योंकि यह बात रदरफोर्ड भी जानता था, उसने भी देखी हुई थी. रदरफोर्ड ने कहा कि हां, इस एंगल से मैंने नहीं सोचा है, इस डायरेक्शन में मैंने नहीं सोचा है. डेफिनेटली वी नीड टू थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट एज वेल. And looking at this observation, I admit that there is something wrong in this model of atom. There is something needed to be added. इस मॉडल ऑफ एटम को एज इट इज तो नहीं लिया जा सकता, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने की आवश्यकता तो है. एंड रदरफोर्ड हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ हिज मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम का फेलियर स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया था. उसने कभी किसी तरह की कोई बहसबाजी नहीं करी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा, क्योंकि नील बोर ने जो पॉइंट उठाया था वह बिल्कुल वैलिड पॉइंट था. और इस तरह से रदरफोर्ड का यह मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट होते से ही फेल भी हो गया. देखिए कैसी स्थिति होती है. जे थॉमसन, जिसने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा और एक बकवास फेंक दी प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से,
उसका वह मॉडल तो सालों तक चला, मगर रदरफोर्ड जिसने ढेर सारी मेहनत करके, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके, ढेर सारे कंक्लूजन्स लगाकर, इतनी मेहनत के बाद जो मॉडल ऑफ एटम दिया, वो मॉडल ऑफ एटम कुछ दिन भी नहीं चल सका, कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में फेल हो गया, उसने स्वयं नहीं मान लिया। मगर फिर भी नो सॉरो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भले ही फेल हो गया, मगर रदरफोर्ड का वह एक्सपेरिमेंट अमर हो गया। वह अमर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसी मॉडल ऑफ, उसी एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के उसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियई डिस्कवर हो गया, न्यूक्लियई के एग्जिस्टेंस का पता लग गया, और इसके आगे पूरी की पूरी फिजिक्स में हमने हमेशा उस न्यूक्लियई की बात करी, उस न्यूक्लियई की स्टेबिलिटी की बात करी, और हमेशा उस न्यूक्लियई को माना। एनीवे, रदरफोर्ड के इस मॉडल ऑफ एटम को फेलियर करवाने में किसका रोल था? नील बोर का। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का यह ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर नील बोर ने जो ऑब्जेक्शन उठाया, उस ऑब्जेक्शन के द्वारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो फेल हो गया। वही नील बोर ने इस टॉपिक पर फर्दर काम करना चालू करा। उसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो फेल करवा दिया, फिर इसी टॉपिक पर उसने काम करना चालू करा, और उसने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे, ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस करे, और उन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर नील बोर ने बोर मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करा, जो बहुत ही खूबसूरत मॉडल ऑफ एटम है, बेहद सफल भी है, काफी अधिक केसेस में अप्लाई भी करता है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम, मैं नील बोर के द्वारा दिया गया बोर मॉडल ऑफ एटम समझाऊंगा, मगर उस बोर मॉडल ऑफ एटम को भी समझाने से पहले मैं कुछ और भी बातें समझाऊंगा, विच लीड्स ऑल दोस डेवलपमेंट विच लीड्स टू बोर मॉडल ऑफ एटम। मैं सबसे पहले बोर मॉडल ऑफ एटम समझाने से पहले समझाऊंगा ऑल दोस डेवलपमेंट विच लीड्स टू बोर मॉडल ऑफ एटम। पहले मैं वहां समझाऊंगा, पहले उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज, अभी तक जो हमने समझा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में समझा है। इसी बेसिस पर मैं कुछ टर्म्स पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सबसे पहला टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, समझाते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, it's generally denoted by Z, and its number of protons or the number of electron. Atomic number of atom is defined as number of protons or number of electrons in an atom. It's generally denoted by Z. We used to say number of proton Np is always equal to number of electron Ne, and it's always equal to Z. ये सारे प्रोटॉन न्यूक्लियई के अंदर होंगे, और सारे प्रोटॉन के न्यूक्लियई के अंदर होने से न्यूक्लियई के अंदर प्लस Ze चार्ज होगा। विद दिस एटॉमिक नंबर वी कैन ऑलवेज राइट चार्ज ऑन द न्यूक्लियई इज इक्वल टू प्लस Ze. Charge on the nuclei is plus Ze, because each proton will have plus E charge, and nuclei have got Z charge, and hence the charge on the nuclei is plus Ze. ऑलरेडी मैंने इस बात को इस्तेमाल करना चालू कर दिया बताने से पहले ही, और मैंने बता भी दिया। और इतने ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। यदि 4 प्रोटॉन न्यूक्लियई के अंदर होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे। 10 प्रोटॉन यदि न्यूक्लियई के अंदर होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे। We used to define the concept of atomic mass. Atomic mass is
mass of atom. It's given in AMU. 1 AMU is 1 by n grams, or 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, or 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilograms. Atomic mass means mass of an atom. Mass of atom is always given in AMU, atomic mass unit. This AMU is atomic mass unit. Atomic mass unit. And 1 AMU is always equal to 1 by n grams. N is Avogadro's number. N is Avogadro's number. 6.023 into 10 to the power 23. We call it Avogadro's number. जैसे हीलियम का मास होता है 4.0026 AMU, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.008 AMU. That is mass of an atom. Now, we used to define another concept of mass number. Mass number. It's denoted by A. This mass number A is the sum of number of neutrons and the number of protons. The total number of protons and neutrons is termed as mass number. This mass number is number of neutron plus Z. The sum of the total number of neutrons and protons is termed as mass number. It's always a whole number. In fact, it's always an integer. Always an integer. It's always an integer, positive integer. अब हम इसे मास नंबर क्यों कह रहे हैं पहले ये भी देख ले. प्रोटॉन का मास होता है रफली 1 AMU. न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1 AMU, नियरली 1 AMU, वेरी क्लोज टू 1 AMU. और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0. इलेक्ट्रॉन डजंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द मास ऑफ एटम. इलेक्ट्रॉन का मास 0 है. इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के मास पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है. प्रोटॉन, the mass of proton is 1 AMU and mass of neutron is 1 AMU. Proton and neutron generally contribute for the mass of an atom, and each proton contribute 1 AMU, each neutron also contribute 1 AMU. If we add number of neutron and number of proton, then the integer that we'll get would be very close to mass of an atom. Number of proton और number of neutron को यदि हम ऐड कर दें तो जो इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगी वह इंटीजर वैल्यू it would be very close to mass of an atom. Hence we call it mass number, because it's that number which suggests us the rough mass of an atom. यह
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ देने से जो हमें नंबर मिलेगा, जिसे हमने ए से डिनोट करा, दिस नंबर वुड बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, हेंस वी कॉल इट मास नंबर, वी डिनोट इट बाय ए. एंड from here we can also write an expression for the number of neutron. Number of neutron is always equal to A minus Z. Mass number minus Z. This is number of neutron in any atom, A minus Z. Now, any atom is generally denoted like this. किसी भी एटम को डिनोट करने का जो तरीका होता है मैं बताऊं. X if it is an atom, तो उस एटम को डिनोट करते समय उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस तरीके से डिनोट करा जाता है. We used to say any atom X is denoted like this. Atomic number is mentioned here, mass number is here. Or AZ और AZ, इस तरीके से हम किसी भी एटम को डिनोट कर सकते हैं, इन चारों में से कोई से भी नोटेशन को. X इज एन एटम. X यदि एटम है तो हमने X लिखा ऊपर इस तरह से, या तो आगे या पीछे, कोई आगे लिख देता है कोई पीछे लिख देता है, हार्डली मैटर. ऊपर की तरफ जो लिख रहा है दैट इज मास नंबर, और नीचे जो लिख रहा है दिस इज एटॉमिक नंबर. This is mass number, this is atomic number. For example, मैं इसी समय एक एग्जांपल बताता हूं. गोल्ड 97 197 इस तरीके से लिखा हुआ है. गोल्ड 97 197. It means atomic number of gold is 97. Atomic number of gold is 97. This is equal to number of proton and this is also equal to number of neutron, number of electron. This is atomic number. And 197, this is mass number. Mass number of gold is 197. This is equal to number of protons plus number of neutrons. It means the mass of gold atom is roughly 197 AMU. The mass of gold atom is roughly 197 AMU. इसमें 97 इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल, इग्नोरेबल. गोल्ड एटम का जो मास होगा रफली 197 AMU होगा. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन गोल्ड एटम, number of neutron in gold atom would be A minus Z. A minus Z, 197 minus 97, it contains 100 neutrons. गोल्ड एटम में 100 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए. बड़े ध्यान से इस बात को देख ले. मैं आगे कुछ टर्म्स और बताता हूं. प्लीज नोट इट डाउन.